Morning, dear students. Today we are here with our social science chapter 10, Organs of Government, part 1. So in chapter 9, we have discussed many things about fundamental rights, duties, directive principles of state policy. We have already learned about constitutions, right? So this is also a part of it. It is also a part of constitution itself, right? This is we called as organs of government. And as you can see in the picture, these organs of government are divided into three arms. We can say organs have its three arms to empowers, right, the constitution. So these three arms are judicial, executive and legislature, or we can say executive, legislature and judicial. Okay, so judiciary, we all know what is it. Legislature or executive शायद आपके लिए नया है, so we'll read it out. Let's move on. Organs of government. There are three organs of government: the legislature, the executive and the judiciary. As I explained you that there are three organs, that is, I can say there are three important parts of government, okay, or important body parts of government, that is legislature, executive and judiciary. Now what is it means? Legislature something we can say that in which formulates laws. ठीक है, legislature का काम है laws formulate करना. It enjoys a very special and important in every democratic state. Fine. It is the assembly of elected representatives of the people and represents national public opinion and power of the people. This is what we call legislature. First thing is that it formulates the laws. अब ये laws form करने वाले लोग कौन है, right? So these are the people whom we have elected, or we can say elected representatives of people. Okay, बस इतना समझो, फिर हम डिटेल में जाएंगे. Next comes executive. Now, whatever the laws been formulated by legislature, okay, whatever the laws been formulated by legislature, it is been followed by executive. ठीक है, लेजिस्लेचर का काम था लॉ बनाना, उन्होंने लॉ बना दिया, बट लॉ को फॉलो कौन करेगा, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा. ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल ने लॉज बना दिए, गेटिंग, बट अब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज को एग्जीक्यूट किया जाए. गेटिंग, सो टीचर्स विल हेल्प आउट टू एग्जीक्यूट देयर लॉज. अब टीचर ध्यान देंगे कि स्टूडेंट्स वो हर एक लॉज को फॉलो करें. सो दिस इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव व्हाट, who is executive here? So executives we can say all the ministers, right? जितने भी ministers है हमारे government के, fine, we can say prime ministers, chief ministers, whosoever, getting, presidents and all such includes in this executive. Okay, समझ में आया? Legislature, that's who makes law. Executive, that who executes the law, इसलिए उनको executive कहा है. And judiciary का काम ये है कि suppose if anybody is not following the law, या law को अच्छे से execute नहीं किया गया, right, या किसी के साथ inequality हुई, so the punishable offense is being done by judiciary. Judiciary का काम है कि ये law को follow करवाया जाए. अगर कोई लॉ फॉलो नहीं करता तो उसे पनिश करना, उसके साथ क्या करना है वो डिसीजन लेगी जुडिशियरी. ठीक है, so we shall study in detail the formation of all these organs, three organs of the government, their powers, functions, their interpersonal relations. तो हम इन तीनों को बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हम उनके पावर्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस, तीनों के पास कौन से पावर्स है, उनके फंक्शंस क्या है, और एक दूसरे के साथ उनके रिलेशंस क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्या रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का क्या रिलेशन है, और ये तीनों का एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशन है. विल स्टडी दैट आल्सो. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation, right? तो main objective क्या है nation का, right? That is कि ये जितने भी laws legislature बना रहे हैं, it is to be maintained, right? ये law और order maintain होना चाहिए, लोगों का वेलफेयर, नेशन का वेलफेयर अचीव हो, जो हमारा टारगेट है. ऑब्वियस है कि हर एक कंट्री की गवर्नमेंट का यही एक objective होना चाहिए, that is the welfare of a nation, the welfare of a people, development of a nation. Okay,
एंड एट द सेम टाइम टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम। और इसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि लॉ को फॉलो करवाने में किसी की फ्रीडम हम छीने, किसी के साथ किसी के फंडामेंटल राइट्स हम छीने, किसी के साथ कुछ भी इनइक्वालिटी ना होकर ये सारी चीजों को मेंटेन करना, ये लॉज और ऑर्डर्स को फॉलो करवाना सिटीजन्स के पास, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेशन। ठीक है। For the progressive development of the state, it is necessary that all the three organs of the government is the legislature, the executive and the judiciary work in mutual unity, cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently. Let us move to my same example of a school. मैं बार-बार अगर मैंने अभी तक 8, 9, 10 चैप्टर जितना भी पढ़ाया है, right, I have given the same example that is of school, right, कि चलो प्रिंसिपल ने या ट्रस्टीज ने या जो भी है हमारे हेड्स, उन्होंने तो रूल्स बना दिए, लेट अस टेक देम एज अ लेजिस्लेचर। ठीक है। अब वो लॉज को एग्जीक्यूट करवाने का काम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का भी है, कहीं ना कहीं टीचर्स का है। ठीक है। वो लॉ और ऑर्डर प्रिंसिपल पास करेंगे, इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द टीचर्स, राइट। और वो टीचर्स क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स को वो रूल्स रेगुलेशन समझाएंगे कि ये रूल्स और रेगुलेशंस या ये लॉ और ऑर्डर पास हुआ है और आपको फॉलो करना है। ओके, सो इन दिस मैनर इट गोज ऑन। जुडिशरी यानी अगर कुछ गलत होता है तो लेट इट बी, उसे थोड़ा अलग रखते हैं, फाइन। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, वी कैन से, फाइन। अब क्या होता है, अब ये काम तीनों के बीच में कब होगा, व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल यूनिटी, राइट। म्यूचुअल यूनिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल यूनिटी का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो एकता म्यूचुअल होनी चाहिए, तीनों ही एक दूसरे के साथ वो यूनिटी बनाए, ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी हर एक को ये बात पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है बट जुडिशरी को ऐसा लग रहा है कि ये लॉ बराबर नहीं है, राइट, तो वो उस लॉ को रोक सकती है जुडिशरी, फाइन। सो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करना चाहते हैं। गेटिंग, द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉज, ये मैंने बता दिया, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज फ्रेम करना, सॉरी। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द फ्रेम्ड लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तो एग्जीक्यूट द लॉ, that is we can say to implement the framed laws, the laws which is framed by legislature, उसको implement करना, उसको लागू करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव का। the judiciary maintains law, और जुडिशरी का काम है कि वो लॉज मेंटेन होने चाहिए, राइट। और अगर कोई लॉज मेंटेन नहीं करते या कोई लॉज के अगेंस्ट जाता है तो ऑर्डर बाय पनिशिंग द पीपल हु वायलेट्स द लॉ, तो ये ऑर्डर भी पास करना कि जो लॉज फॉलो नहीं करते वो उन्हें पनिशेबल या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है। द लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द स्टेट लेवल। अब ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेजिस्लेचर को कंसंट्रेट करते हैं। लेजिस्लेचर में क्या होता है, हम कब से बोल रहे हैं लॉज फ्रेम होता है, लॉज फ्रेम होता है, बट कैसे लॉ फ्रेम की जाती है। सो उसके लिए कोई सेंटर ऑफ बॉडी तो होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहां से ये लॉज फ्रेम करते, तो वो जगह है पार्लियामेंट। ठीक है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें जो कहाँ बैठती है, दिल्ली में, वहां पे होता है पार्लियामेंट, जहां ये लेजिस्लेचर्स या लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी जाती है, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली है पार्लियामेंट, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही कहते हैं, राइट, क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों जगह लेजिस्लेचर की है, जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पे एग्जीक्यूटिव असेंबलीज किसको कहते हैं, असेंबलीज का मतलब है वेयर पीपल came together to make some decisions, to make some laws or something, ठीक है, उसे असेंबली कहते हैं। सो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव मीन्स टू फ्रेम द लॉज एंड असेंबली विच फ्रेम्स द लॉज, सॉरी असेंबली एन असेंबली विच फ्रेम्स द लॉज। तो यहाँ पे ये मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है।
सो लेजिस्लेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है? पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अब एग्जीक्यूटिव कौन है? चलो लेजिस्लेटिव समझा दिया। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ फ्रेम करना। कहाँ बैठ के वो करते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पार्लियामेंट में बैठ के करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में करते हैं। बट ये कौन बैठता है लॉ फ्रेम करने के लिए? कौन लोग होते हैं? तो वो लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, यानी इन शॉर्ट सारे मिनिस्टर्स आ गए। And their administrative system at the center, and the governor, the chief minister and his cabinet, and administrative system at the state level. अब यहाँ पे भी दो सिस्टम है। मैंने एक बार फेडरल गवर्नमेंट की डिस्कशन किया था, ठीक है, कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल गवर्नमेंट, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगी। इफ somebody wants to run a school, एक स्कूल को रन करना है तो प्रिंसिपल कैन नॉट alone able to run the school, right? प्रिंसिपल अकेले लगता है कि पूरा स्कूल चला सकते हैं? 1 to 12 स्टैंडर्ड्स ले लो, या इवन चलो 1 to 5 स्टैंडर्ड ले लेते हैं, अकेले चला पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, सब्जेक्ट्स पढ़ाना, इतने सारे बच्चों के क्लासेस एट द सेम टाइम वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, राइट? सो दैट्स व्हाई इस स्कूल को सिस्टमैटिक मैनरफुल मैनर में रन करने के लिए क्या किया गया? टीचर्स अपॉइंट किए गए। हर एक क्लास का एक टीचर हो गए क्लास टीचर। अब क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी क्लास को देखना, ठीक है। बट क्या हो जाता है, एक क्लास टीचर और 50, 60, 70 स्टूडेंट्स कैसे पहुंच पाएंगे? इतना सारा वर्कलोड कैसे होगा? और डिविजन किया। तो क्लास टीचर ने सोचा चलो मॉनिटर्स रख देते हैं, राइट? क्लास में मॉनिटर्स रख दिए। जैसे अगर 80 स्टूडेंट्स है तो 4 मॉनिटर रख दिए, 60 स्टूडेंट्स है 3 मॉनिटर रख दिए। सो अकॉर्डिंगली, राइट, जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा मॉनिटर, जितने कम बच्चे उतने कम मॉनिटर। अब क्या हो गया? टीचर का काम थोड़ा बहुत तो कम हो गया, अब मॉनिटर्स थोड़ा संभालेंगे, है ना? सो इन दैट मैनर सिस्टम, हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसा ही है। अब पूरा एक गवर्नमेंट एक जगह पे बैठ के, दिल्ली पे बैठ के पूरे कंट्री को कैसे रन करेगा? सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट, नॉट पॉसिबल। सो क्या सोचा गवर्नमेंट ने कि एक काम करते हैं, पूरे नेशन को है ना स्टेट वाइज हम पहले डिविजन कर देते हैं। जैसे स्कूल को हमने क्लास वाइज डिवाइड कर दिया, है ना, वैसे इसको स्टेट वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो देयर आर नंबर्स ऑफ स्टेट इन अ नेशन, राइट? गुजरात, महाराष्ट्र, दिस दैट, ओके, सो ऑन। अब इतने सारे जो स्टेट्स हो गए, अब इसको कौन चलाएगा? तो उन्होंने सोचा एक गवर्नमेंट वहां रख देते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट आया। अब अकेली स्टेट गवर्नमेंट है, नंबर्स ऑफ व्हाट? cities, villages, districts, right? जिल्लास, तालुकास and such in that manner. इतना सारा कैसे मैनेज होगा? तो क्या किया? हर एक सिटी में, हर एक विलेज में, हर एक तालुकास में एक एक गवर्नमेंट, यानी पंचायत हम कह सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है ना? हमारे एरिया वाइज में भी ये डिवीजन होता है। क्यों किया जाता है? कि इंसान की, सिटीजन की छोटे से छोटे डिमांड या छोटी से छोटी तकलीफों को भी हम सॉर्ट कर सके। अब इसका मतलब ये तो नहीं, तो सी ये जो दो गवर्नमेंट, मेन हमारी गवर्नमेंट कौन से? दैट इज दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये बात हुई इंडिया की। बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री, जैसे हम यूएसए की बात करें, वहां पे भी फेडरल सिस्टम है, गेटिंग, बट वो फेडरल सिस्टम क्या कैसा है? इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे तो हमने स्टेट में इसलिए डिवाइड किया कि हम सिस्टमैटिकली रन कर सके। बट हु इज द हेड, हु इज द एपेक्स गवर्नमेंट? एपेक्स गवर्नमेंट इज ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करेंगे वही स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना ही करना है, राइट? प्रिंसिपल जो ऑर्डर पास करेंगे वो टीचर्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स अपने हिसाब से डिसीजन ले, बट हाँ, उनका क्लास है टीचर का, तो वो अपने हिसाब से क्लास में डिसीजन ले सकते हैं। बट जो भी प्रिंसिपल्स ऑर्डर पास करते हैं वो उन्हें फॉलो करना ही है इन द सेम मैनर। बट अगर मैं यूएसए की बात करूं तो देयर इज अ फेडरल सिस्टम, बट वो फेडरल सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। वहां पे कंट्री अपने हिसाब से काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। बोथ हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम बट देयर इज अ डिफरेंस इन दिस, ठीक है। तो मैंने बात की फेडरल सिस्टम की, ओके। सो फेडरल सिस्टम मैंने क्यों समझाया? इसलिए समझाया कि हमारी कंट्री के दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है,
वो कौन सी है? वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा भी दूसरी छोटी छोटी हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं वो है, ठीक है। बट मेन ये है, जैसे दूसरा फेडरल कौन सा है? दो एग्जाम्पल है फेडरल के सिस्टम के। वन इज द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है। दूसरा क्या है? फेडरल कोर्ट्स आर देयर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट अकेला कोर्ट पूरे कंट्रीज के केसेस कैसे सॉर्ट आउट करेगा? इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे सिटीज, दीज दैट, नॉट पॉसिबल। सो अगेन यही डिसीजन लिया कि चलो पूरी कंट्री का अगर कोई इंपॉर्टेंट केस आता है, कैसे केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है? अगर ऐसा एक केस है कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में मगजमारी है, चलो महाराष्ट्र और गुजरात ले लेते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में किसी वजह से कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, राइट? तो अब हम अगर हम बोले कि हाई कोर्ट के पास जाए तो ये एक मुद्दा हो जाएगा, कौन से हाई कोर्ट के पास जाएंगे? गेटिंग? क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट इसमें भी है, गुजरात की भी है और महाराष्ट्र की भी है। तो जब दो स्टेट्स के बीच में कोई इश्यूज होता है तो हम जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही बड़े बड़े केसेस जाएंगे, गेटिंग? बट एक सिटी का दूसरे सिटी के साथ कोई इश्यू चल रहा है, गुजरात स्टेट की ही एक सिटी है, जैसे अहमदाबाद सूरत ले लेते हैं, दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर इश्यू हो रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा? नहीं, वो जाएगा हाई कोर्ट के पास। समझ में? तो इस तरीके से वर्कलोड को डिवाइड किया जाता है सो दैट के ओवरलोड ना हो जाए और दूसरा मैनरफुली काम चले, ठीक है। सो दिस वाज द फेडरल सिस्टम। सो अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए मेन जो हेड है वो हमारे है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो। अब स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर है। दोनों का काम सेम है, बट प्रेसिडेंट सेंट्रल यानी नेशंस को संभालता है, गवर्नर एक स्टेट को संभालता है, ठीक है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर सिर्फ वर्ड्स अलग है, अदरवाइज द वर्क सिस्टम इज सेम, ओके। जो काम प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में करता है वही काम चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में करेगा, सीएम, पीएम, ठीक है। और दूसरा रहा कैबिनेट मिनिस्टर्स। दोनों की कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अकेले काम नहीं कर सकते इतना सारा, एक्सपर्टाइज नॉलेज भी तो चाहिए, तो इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स बनवाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में फाइनेंस मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, राइट, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं अपने एक लेवल की एक्सपर्टाइज होती है और उसे यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये एक टीम होती है मिनिस्टर्स की जो हर एक मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया? एग्जीक्यूटिव दो लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। स्टेट लेवल में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं जुडिशरी पे। मैंने जुडिशरी तो ऑलरेडी इसमें ही समझा दिया। मैंने कहा फेडरल सिस्टम दो टाइप के हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा फेडरल सिस्टम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, यही हम पढ़ने वाले। सी whereas in the judiciary the supreme court is at the top, सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे है, ये पूरी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट है। और अगर आई थिंक यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर में 8th चैप्टर था, है ना, 8th चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि अगर दो कंट्रीज के बीच का मुद्दा है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट में आएंगे? तो ये इश्यू नहीं होगा कौन से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, चलो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, ओके, लेट अस टेक के कोई मैटर चल रहा है, वो कोर्ट में गए, वो अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो इंडिया तो ऑब्वियस है क्या करेगी, पार्शियलिटी करेगी, वो हमारी कंट्री को ही सपोर्ट करेगी। वहां के कोर्ट में जाएंगे तो वो उनकी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। सो ये पार्शियलिटी ना हो इसलिए इससे ऊपर एक बड़ी कोर्ट रखी है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। हमने पढ़ा था ना वो नेदरलैंड में हक में है, राइट। सो इन दैट मैनर सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है और हाई कोर्ट स्टेट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। हर एक स्टेट्स में एक एक हाई कोर्ट होती है, गेटिंग। बट अब क्या है कि पहले एक बड़ा सा स्टेट था, अब धीरे धीरे अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जो उसमें से अलग होके नए स्टेट्स बन गए हैं, तो उनमें कंबाइन हाई कोर्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने स्टेट्स है उतनी हाई कोर्ट हो, अभी बहुत सारे स्टेट्स पहले बड़े थे अब उसमें से डिवाइड हो गए हैं। सो कंबाइंड हाई कोर्ट्स भी होते हैं कि दो छोटी स्टेट्स है तो उनकी एक कॉमन हाई कोर्ट होगी, फाइन। So middle are the high courts of the states
एंड एट द अब जैसे हाई कोर्ट तो चलो बना दी, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट दे दी, पर इतना पूरा बड़ा स्टेट गुजराती देख लो कितना बड़ा है, अब उसमें इतने सारे सिटीज, इतने सारे मुद्दे और इतनी पॉपुलेशन, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम, सबके अपने अपने केसेस है, अकेली हाई कोर्ट कैसे हैंडल करेगी? नहीं कर पाएगी। तो हमने इसको और डिवाइड कर दिया, हमने इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या होता है, यानी सिटीज एरियाज में हम जाते हैं ना, फैमिली कोर्ट होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती है, गेटिंग? तो ऐसी बहुत सारी कोर्ट्स होती है और उनके जैसे मैटर वैसी कोर्ट। वैसे सिटीज में कुछ कोर्ट्स होती है, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट होती है, कुछ स्पेशल कोर्ट्स होती है, अगर पानी का रिलेटेड मुद्दा है तो उनकी एक स्पेशल कोर्ट्स होती है, फैमिली इश्यूज है तो मैंने कहा फैमिली कोर्ट्स होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती है जो बहुत फास्टली आपके एक आध दिन में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। सो वैसे बहुत सारे कोर्ट्स बना दिए गए सो दैट कि हर एक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। सो देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे की कोर्ट्स, ठीक है? उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए और स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है? चलो, thus the judiciary is a separate, independent and organized whole which is completely apart from the legislature and executive. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, अगर आपने हमारी फर्स्ट स्लाइड का वो जो पिक्चर देखा होगा इंट्रोडक्शन के पहले वाला, उसमें जो मैंने पिक्चर दिखाया है, जो एक चार्ट, पाई चार्ट देख रहे हो आप, उसमें देखना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुड़ा हुआ है, जुडिशरी उससे अलग है, राइट? वो डिवीजन क्यों? वो इसलिए कि जुडिशरी के सामने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, राइट, वो अगर मुद्दा कोई भी हो, अगर लेजिस्लेचर से गलती हुई है लॉज फ्रेम करने में तो भी जुडिशरी उससे अगेंस्ट जा सकती है, एग्जीक्यूटिव से, मिनिस्टर से कोई गलती हुई है तो भी वो पनिशेबल होगा, राइट? तो इसीलिए जुडिशरी को क्या किया गया है, इस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के सिस्टम से अलग रखा है। वरना यहाँ पे तो इंडिया की सबसे बड़ी इश्यू क्या पता है ना, लागू में सारे काम निकलवाते हैं। अगर जुडिशरी इनसे जुड़ी हुई होती, पहले जुड़ी हुई थी, राइट, तो मिनिस्टर्स अपनी लागू से बच जाते थे, अपना काम निकलवा लेते थे, राइट? लॉज फ्रेम होने लगते थे, गलत लॉज भी फ्रेम होते थे। ये सब ना हो इसलिए क्या किया कि इसको कंप्लीटली अलग रखा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग रखा। यानी जुडिशरी में इन द आई ऑफ लॉ वो चाहे मिनिस्टर्स है या जो कुछ भी हो, राइट, पनिशेबल है तो है, ओके? अब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, right? India is क्या है? Union of states, means there are numbers of states. No states is completely independent and sovereign. जैसे मैंने फेडरल सिस्टम जो पूरा एक्सप्लेन किया वही ये है, राइट? कि कोई भी स्टेट को पूरी आजादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी करे, और वो पूरी तरीके से स्टेट सोवेरियन नहीं है, कंट्री सोवेरियन है, ये बात समझो। कंट्री इज सोवेरियन, इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री। सोवेरियन का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी नो इंटरफियरेंस ऑफ other countries foreign affairs, ठीक है? there will be no interference of foreign affairs, यानी फॉरेन कंट्रीज, जैसे पहले के जमाने में ब्रिटिशर्स आए, हमने उनको इंटरफेयर करने दिया इसलिए वो इंटरफेयर कर पाए, धीरे धीरे वो हम पे रूल करने लगे, तो ये दोबारा ना हो इसलिए हमने हमारी कंट्री को सोवेरियन बताया, बट हमारे स्टेट सोवेरियन नहीं है। क्यों सोवेरियन नहीं है? स्टेट सोवेरियन नहीं है का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्टेट में कुछ भी चल रहा है, कोई इश्यू चल रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, ये उनके पास पूरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और इवन इमरजेंसी केसेस में, राइट, जैसे मैं बोलूं कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया था, बहुत फ्लडी एरिया हो गया था, राइट, तो उस वक्त वो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन इतने बड़े नहीं ले सकते, they have to take the help of central government। और ऐसे इमरजेंसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उसका वर्किंग खुद चलाती है। उस वक्त जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे वही स्टेट गवर्नमेंट को मानना है और फॉलो करना है। दैट्स व्हाई पूरी आजादी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है कि वो जो भी चाहे अपनी मनमानी कर सकते हैं, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है बट यूएसए में पॉसिबल है ना, क्योंकि वहां की फेडरल सिस्टम्स क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। हमारे इंडिया की फेडरल सिस्टम एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ओके? हमने सिर्फ डिवीजन इसलिए किया है कि हम अच्छे से इसको एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है? द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज divided the powers according to the principles of division of powers between the center and the state, such that the legislature and the executive is totally interdependent on each other. हमारी इंडियन
पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, राइट, उन्होंने क्या किया है, पावर्स को इस तरीके से डिवाइड किया है, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड कर दिए गए हैं, ओके। बट कुछ पावर्स अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो स्टेट को कभी भी अपने अंडर में ले सकती है, ओके, सच दैट द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज टोटली इंटरडिपेंडेंट। तो इस तरीके से इनके पावर्स को डिवाइड किया है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, बट जुडिशियरी किसी पर भी इंटरडिपेंडेंट नहीं है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी वो जा सकता है, राइट। Whereas the judiciary is separate, independent and impartial organ। ये बिल्कुल impartial है। जुडिशियरी किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करेगा। अगर पार्शियलिटी की तो फिर क्या होगा, फिर न्याय का मतलब ही क्या, जस्टिस का मतलब ही क्या, किसी को जस्टिस ही नहीं मिलेगा अगर जुडिशियरी पार्शियल हो जाएगा तो, है ना। सो जुडिशियरी कभी भी पार्शियल ना हो, राइट, पार्शियलिटी ना करे, इसीलिए जुडिशियरी को सेपरेट रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, फाइन। अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ पावर। अब किस तरीके से ये पावर को डिवाइड किया है, हमने डिस्कस किया पावर्स डिवाइड हुए, पर किस तरीके से किए हैं, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, लेट्स रीड। द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। गवर्नमेंट ने कुछ फंक्शंस बनाए हैं स्टेट के लिए, बट ये एक दूसरे से बहुत अलग है। कैसे? The function of all the three organs of the government are different and at the functions require a certain expertise। अब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये तीनों जो ऑर्गन है, इन तीनों का काम अलग है, तीनों के फंक्शंस अलग है ना। तो और तीनों की अपनी एक एक्सपर्टाइज है। लेजिस्लेटिव यानी लॉ बनाना, तो लॉ से रिलेटेड नॉलेज तो होना चाहिए लोगों के पास, है ना। एग्जीक्यूटिव, उसको एग्जीक्यूट करना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। अब जुडिशियरी, तो जुडिशियरी अगेन जस्टिस दे रहे हो, तो लॉ का नॉलेज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने समझा है, जुडिशियरी ने, है ना। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियल सिस्टम, राइट। तो तीनों का काम अलग है और तीनों में एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। मैं अकेली, इफ आई एम अ इंग्लिश और एसएस टीचर, आई कैन नॉट टेक मैथ, साइंस एंड एवरीथिंग। मेरा नॉलेज सिर्फ इंग्लिश और एसएस का एक्सपर्टाइज नॉलेज है, मुझे आता है, बट जो एक्सपर्टाइज मैथ्स टीचर या साइंस टीचर में होते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स में होते हैं, वो एक्सपर्टाइज मैं आपको उसमें नहीं दे सकती, गेटिंग। तो वो एक्सपर्टाइज नॉलेज किसमें है मेरा, दैट इज एसएस इन इंग्लिश, इन दैट मैनर, फाइन। All the three organs of the government should be administered by different people and each organ should carry out its own function। अब तीनों ऑर्गन के जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लोग ही एडमिनिस्टर करते हैं, ऑब्वियस है, तीनों को अलग अलग लोग एडमिनिस्टर करते हैं, हर एक ऑर्गन को, और हर एक के फंक्शंस भी उसी हिसाब से फॉलो किए जाते हैं। By division of powers, misuse can be avoided। क्योंकि पावर्स डिवाइड कर दिया, हमें पता है कि किसके पास कितना पावर है, राइट। अब अगर उसको मॉनिटर बनाया तो वो टीचर नहीं बन सकता, उसको मॉनिटर ही रहना है, और मॉनिटर का मतलब वो बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता, किसी को डांट नहीं सकता, गेटिंग। तो उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, समझ में आया। अब टीचर के पास कैसा है, टीचर हाँ बच्चे को डांट सकती है, शायद मार सकती है या जो कुछ भी, बट वो टीचर को स्कूल से नहीं निकाल सकती बच्चे को, वो पावर प्रिंसिपल के पास है। सो इन दैट मैनर डिविजन्स ऑफ पावर्स रखे गए हैं, सो दैट के कोई भी इसको मिसयूज ना करे, ठीक है। It is necessary to divide the powers among the three organs of the government in order to make the function of the government easy and efficient। और क्यों किया ये सब, ये बहुत जरूरी है कि हम पावर्स को डिवाइड कर दें, so that कि गवर्नमेंट इजी और एफिशिएंट मैनर में अच्छे से काम करे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू फॉर्मुलेट लॉ, बट सम पावर्स आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर। जैसे लेजिस्लेचर को एक काम दे दिया, उनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू फॉर्मुलेट लॉ, ये उनका काम है। अब बट सम पावर आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव, कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव को भी दिए हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो लॉज को, उनके पास ये पावर है कि वो लॉज को एग्जीक्यूट करवाए, इंप्लीमेंट करवाए।
और जुडिशियरी के पास कौन सा पावर है? जुडिशियरी के पास ये पावर है कि लेजिस्लेचर इसका मिसयूज ना करे, अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। Similarly, the executive is controlled by giving powers to the legislature, and the judiciary is controlled by giving powers to the legislature and the executive. See, अब executive किससे controlled होता है? Right, controlled by giving powers to legislature. Legislature के powers के बिना executive कुछ नहीं, executive के powers के बिना legislature कुछ नहीं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कोई misuse, अपने powers का misuse नहीं कर सकता, अगर किसी ने भी misuse किया तो वो निकाल दिया जाएगा। Getting? और judiciary is control, judiciary कैसे control होता है? Is controlled by giving powers to the legislature or executive. ठीक है, वो दोनों को पावर देता है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी भी अगर कहीं गलत होती है तो उसके रिलेट भी क्या करना है वो भी दिया गया है। गेटिंग? सो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑल आर इंटर रिलेटेड और ऑल आर इंडिपेंडेंट वी कैन से, राइट। यानी कोई भी अकेला बैठ के इसका मिसयूज नहीं कर सकता। गेटिंग? अब देखो लेजिस्लेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस लेजिस्लेचर। इंडिया इज अ रिपब्लिक having a parliamentary democracy. See, there are numbers of democracy. Democratic system भले हो बहुत सारी कंट्रीज में, पर इसकी सिस्टम अलग अलग हो सकती है। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब दोनों के डिफरेंस में समझाऊं। वी ऑल नो यूएसए में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंडिया में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, बट यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब दोनों के डिफरेंस क्या है? दोनों के डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू वोट्स लिए जाते हैं, राइट। कोई भी डिसीजंस मेजॉरिटी के बेस पे लिया जाता है, सो दैट कि कोई अकेला बंदा, सपोज किसी अकेले बंदे ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, एक के पास हमने पावर दे दी, अबे तू डिसीजन ले, राइट। अब उसका डिसीजन गलत हुआ तो कौन भुगतेगा? पूरा कंट्री भुगतेगा। ये ऐसा ना हो, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो मेजॉरिटी के बेस पे लेते हैं कि शायद एक गलत हो सकता है, पर अगर 10 लोग एक डिसीजन ले रहे हैं तो वो 90% तो राइट होगा। गेटिंग? अब दूसरी बात, पार्लियामेंट्री सिस्टम में राइट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। बट द मेन हेड कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि जब इंडिया के इलेक्शंस होते हैं तो वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस कौन से होंगे वो इंपॉर्टेंट होता है, बट यूएसए के जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? सो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर काम करता है वही काम वहां प्रेसिडेंट करते हैं, इसलिए वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब दूसरा, यहाँ पे प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना है, राइट, तो वो अकेले नहीं ले सकता डिसीजन, उसे प्राइम मिनिस्टर को और उसकी टीम को, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर से डिस्कशन करना पड़ेगा। सब अगर पूरा सब एक डिसीजन को लेने के लिए रेडी होंगे तभी प्रेसिडेंट उस पे साइन करेगा। अब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है भी ये डिसीजन गलत है, बट प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर को लगता है कि नहीं ये सही है, तो वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट अकेला कुछ भी कर सकता है, और इसलिए समटाइम्स व्हाट हैपन यू नो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यानी यूएसए में प्रेसिडेंट्स कभी कभार क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं अपने पावर का, राइट, और वो मिसयूज वहां होने के चांसेस है, बट इंडिया में इसके मिसयूज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई अकेला बंदा यहाँ पे एक डिसीजन नहीं लेगा, हर एक को मिलजुल के डिसीजन लेना है मेजोरिटी के टाइम पे। तो इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी पार्लियामेंट यहाँ पे डिसीजन लेता है, वहां पे प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है। पार्लियामेंट यानी नंबर्स ऑफ जिसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों आ गए, और वहां ओनली प्रेसिडेंट टेक्स द डिसीजन। ओके, सो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। The representation of the people at the center is seen at the parliament and the state is seen in the legislative assembly. तो लोगों ने जिनको रिप्रेजेंट किया है, यानी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव यानी लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आगे समझा दिया। द पार्लियामेंट इज एन इंपॉर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द इंडियन
पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे है, ये स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, यानी हम स्टेट सेंट्रल लेवल की बात करें तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, इतने होते हैं। और वही चीज अगर हम स्टेट की बात करें तो वो हम वही बात कर रहे हैं, स्टेट की बात करें, राइट, तो लेजिस्लेचर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बैकामरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, सी when the legislature is consisting of one house, जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, कौन से, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस, लोकसभा इज द लोअर हाउस, ओके। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर उसे कहते हैं जिस स्टेट में एक ही हाउस हो, उसे कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। जो मैक्सिमम स्टेट्स में है, हमारे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी एक हाउस ही है, ठीक है। बैकामरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है वेयर लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, तो उसे कहते हैं बिकामरल लेजिस्लेचर। अब देखते हैं कि कौन में ऐसा है। सी एट द सेंट्रल लेवल में तो दोनों हाउसेस है ही, अपर हाउस है उसे कहते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस है उसे कहते हैं लोकसभा। बट अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 2 हाउस कौन से है, अपर हाउस है और लोअर हाउस है, ठीक है। तो अपर हाउस कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को और लोअर हाउस कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली वन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी बहुत सारे स्टेट्स हमारे कंट्री के ऐसे जिसमें एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और वो स्टेट्स कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 ही स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बोथ हाउसेस है, राइट, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसके अलावा के जितने भी स्टेट्स है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसमें दोनों हाउसेस है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड सच, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ हाउसेस आर देयर इन बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र। रादर देन दैट, इसके अलावा के जितने भी स्टेट्स है उन सब में एक ही हाउसेस है। जैसे गुजरात है तो यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओके। So we are already discussing about legislature, तो वही continue करेंगे, okay. So the first point of legislature, that is legislature at the central level, ठीक है। सो हम लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर क्या है। तो सेंट्रल लेवल हमारा क्या है लेजिस्लेचर का, दैट इज पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लोकसभा, okay. There are 2 houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. After completing Lok Sabha, that is the lower house, उसके बाद हम upper house discuss करेंगे राज्य सभा, fine. So please do concentrate here because हम इसके differences आपको खुद को लिखने होंगे, okay. So let's start. Lok Sabha is the lower house of the parliament. As I told you कि लोक सभा एक lower house है parliament का, fine. अब इसके जो भी member है वो कैसे आते हैं, इसके मेंबर्स कहां से आते हैं, तो इसके मेंबर्स को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, राइट। डायरेक्टली इलेक्शन से इसके मेंबर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ओके। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी लोगों ने जिसे इलेक्ट किया है वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से, ओके, वही मेंबर्स लोकसभा में होता है। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन, सी स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन, वन इज डायरेक्ट इलेक्शन एंड अदर इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है व्हेन वी वोट टू अ रिप्रेजेंटेटिव और वो उस वोट में, उस इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन, के हमने उन्हें वोट दिया और वो जीते। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि वो हमारे वोट से जीत तो गए, बट उसके बाद वो आगे लोकसभा में गए, लोकसभा में मेंबर्स के बीच में एक वोटिंग होता है, इलेक्शंस होता है, राइट। तो उस इलेक्शंस में जिसको मेजॉरिटी वोट मिला फिर वो आगे गए, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम मिस्टर मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी पहले स्टेट लेवल पे था, दैट इज वी कैन से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उसके पहले वो लोकसभा के मेंबर्स भी रहे हैं, राइट। सो लोकसभा में जब वो आए तो हमने उन्हें इलेक्ट किया था,
डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। बट जब वो प्राइम मिनिस्टर के डिजिग्नेशन तक गए तो दैट इज वो इनडायरेक्टली वोट से गए, इनडायरेक्टली इलेक्शन से गए। बट शुरुआत तो बेस फाउंडेशन तो हमने रखा है, वी हैव इलेक्ट देम सो दैट ही इज देयर, फाइन। सो दैट इज वी कॉल इनडायरेक्ट इलेक्शंस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट या ऐसे बहुत सारे जितने भी है मिनिस्टर्स, वो एक लेवल के बाद वहां पे मेंबर्स के बीच में मेजोरिटी वोटिंग होता है और उसमें जो भी जिसको मेजोरिटी मिलती है वोट, राइट, वो अकॉर्डिंगली मिनिस्टर्स बनते हैं, फाइन। सो दैट इज वी कॉल इनडायरेक्ट वोट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। सो लोकसभा देखो आप, उसके कितने मेंबर्स है टोटल, लोकसभा के 545 मेंबर्स होते हैं। ओके, लोकसभा के सबसे ज्यादा, राज्यसभा से अगर हम कंपेयर करते तो लोकसभा हैव द हाईएस्ट मेंबर्स, राइट। सो आउट ऑफ 545 2 members are selected by president. Students हमेशा याद रखना, elected और selected is not one and same, it is the different one. Election का मतलब, elected का मतलब होता है we elect a person by voting, और select करना यानी वहां voting जैसा कुछ नहीं होता, आप randomly किसी को select करते हो। तो यहाँ पे जो 2 members है उसे president select करता है। और ये कौन से members होता है, it is from the Anglo-Indian community. Now what is Anglo-Indian community? Anglo-Indian community का मतलब है the person who is not actual citizen of India but he is living for many years in India and that's why अब वो Indian citizen में आ गए हैं। What it means now? जैसा मैं बोलूं, अगर आप गोवा में जाओगे you find many of the people is not Indians, ठीक है। वहां पे मोस्टली आपको बाहर के लोग मिलेंगे, that is Portuguese and all such, okay। So वो क्योंकि पहले से जब पोर्चुगीज हम पे यहाँ पे रूल करते थे, राइट, उस वक्त से कुछ लोग यहीं पे रह गए हैं और उन्होंने इंडिया छोड़ा ही नहीं। देन आफ्टर दे आर स्टेइंग इन आवर कंट्री ओनली, ओके। सो क्योंकि वो बहुत सालों से इंडिया में रह रहे हैं तो अब उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है, ओके। बट उनके साथ भी कुछ गलत ना हो या उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो लोकसभा में, उनके लिए भी कोई बोले, दैट्स व्हाई इसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। नाउ द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट जो है वो दोनों का पार्ट है, राइट। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ बोथ द हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। सो जब भी फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट सेशन मीटिंग पार्लियामेंट की होती है, राइट, दैट इज हम कहते हैं कि एक सेशन खत्म हुआ, एक ईयर कंप्लीट हुआ और उसके बाद जब नया सेशन शुरू हो, जैसे आपकी स्कूल में कैसे एकेडमिक्स होता है, एक एकेडमिक खत्म हुआ, आपने एग्जाम्स दिए, अब नया एकेडमिक शुरू हुआ। तो जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हुए, लोकसभा फिर से फ्रेम हुआ, लोग वहां पे आ गए, राइट, इलेक्शंस हो गए, तो वो जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। सो इट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट और वी कैन से कि वो फर्स्ट मीटिंग प्रेसिडेंट के स्पीच से शुरू होती है, राइट। एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो जब भी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन इन द सेंस के लोकसभा राज्यसभा की दोनों की साथ में मीटिंग होगी, एक साथ दोनों एक ही पार्लियामेंट में बैठे होंगे फॉर अ कॉमन टॉपिक और वर्ड एवर, राइट, उन्हें भी एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। एट दैट टाइम ऑल्सो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स दिस 2 occasions द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड्स द पार्लियामेंट। तो इसके अलावा एक तो कब पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट अटेंड करेंगे, वन इज when it is a first meeting of the parliament, okay, so it is being addressed by the president, and other thing is when there is a joint session of parliament. Joint session when means that is Lok Sabha and Rajya Sabha comes together and have a meeting, okay, so that is we called as joint session. तो ये 2 cases में ही president वहां available होंगे, okay। rather than that he'll never attends the parliament, वो कभी भी आपको पार्लियामेंट में अदरवाइज नहीं दिखेंगे, प्रेसिडेंट नहीं होते। Now the president can summon both the houses of the parliament, can withhold the proceedings of both the houses of the parliament and can even dissolve the parliament. प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल राइट्स है, ठीक है, और सॉरी राइट्स नॉट वी कैन से आई मीन पावर्स है, प्रेसिडेंट हैव अ स्पेशल पावर्स, ओके। सो
प्रेसिडेंट ही दोनों हाउसेस की मीटिंग एक साथ सुमॉन कर सकते हैं। सुमॉन का मतलब बुला सकते हैं, बिठा सकते हैं दोनों हाउसेस की मीटिंग, ठीक है। वो चाहे तो प्रोसीडिंग्स को विथहोल्ड करके रख सकते हैं, यानी रोक के रख सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग को। दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट रोक के रख सकते हैं, मीटिंग को साथ में बुला सकते हैं, और वो चाहे तो इवन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। कैन इवन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। डिसॉल्व करना यानी लोकसभा को वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगा कि लोकसभा के मेंबर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, राइट, या दोनों साइड के मेंबर्स इज नॉट वर्किंग वेल, तो एट दैट टाइम वो उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। नेक्स्ट, अ बिल White has passed through 3 readings in both the houses of the parliament can become an act only after the president signs it. अब this is very important, see कि दूसरा पावर क्या है। ऊपर एक पावर हमने पढ़ लिया, that is कि एक तो वो हाउसेस को सुमॉन कर सकते हैं। सुमॉन यानी एक मीटिंग बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन वाली मीटिंग, क्योंकि ज्वाइंट सेशन मीटिंग ही में ही प्रेसिडेंट अवेलेबल होंगे, अटेंड करेंगे उसको। या किसी भी प्रोसीडिंग्स को, कोई भी मीटिंग को विथहोल्ड करके रख सकते हैं, उसे कंटिन्यूटी में रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, या फिर और वो चाहे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज द पावर। अनदर पावर इज कि कोई भी बिल पास होता है, राइट। सी एक्ट और बिल में इतना ही फर्क है कि बिल तब तक बिल रहता है जब तक उसे प्रेसिडेंट की साइन ना हो। उसमें अगर किसी भी बिल में प्रेसिडेंट की साइन हो जाए तो इट बिकम्स एक्ट, ठीक है। जैसे कोई भी लॉ पास हुआ, ठीक है, तो कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक बजट, ठीक है, एक बजट बिल पास हुआ। अब बजट बिल कैसे पास होता है? वो 3 बार पढ़ा जाता है लोकसभा में, ठीक है। बजट बिल राज्यसभा में नहीं पढ़ा जाता, मैं क्लियरली बता दूं, इट इज ओनली रेड इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा उसे बनाती है, बट वो राज्यसभा में एक बार सिर्फ पढ़ने के लिए जाता है, रीडिंग के लिए जाता है, राइट। उसे एक बार पढ़ा जाता है इन राज्यसभा, बट राज्यसभा चाहे तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती, बिकॉज मेजोरिटी लोकसभा के पास है, राइट। 545 members is the highest member in the house, ठीक है। लोकसभा has the highest majority और highest member। अब मैं बोलूं कि जब ज्वाइंट सेशन हुआ, चलो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स सबसे ज्यादा है, राज्यसभा के मेंबर्स कम ही है, राइट। सो अगर जब दोनों की मीटिंग होती है, दोनों का वोटिंग होता है, तो किसका सबसे पहले माना जाएगा? लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा है तो उनके वोट ज्यादा होंगे, तो ऑलवेज इसमें मेजोरिटी लोकसभा को ही जाएगी, राज्यसभा को नहीं जाएगी, ठीक है। सो कोई भी सपोज बिल पास होता है, ओके, तो उसे 3 बार पढ़ा जाता है। 3 बार इसलिए पढ़ा जाता है कि एक बार जब बन गया तब रीडिंग होगा, फिर ऐसा लगा एक बार रीड करने के बाद सबके सामने वो रीड किया जाता है, फिर उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत है या कोई पॉइंट्स छूट गए हैं, सो इसलिए उसे थ्राइसली रीड किया जाता है इन बोथ द हाउसेस, ओके, इन द पार्लियामेंट। और उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाता है, पहले वो लोकसभा में रीड किया जाता है, देन आफ्टर वो अपर हाउस में जाता है, राज्यसभा में रीड किया जाता है, एंड देन आफ्टर अगर राज्यसभा भी उसे कंफर्मेशन दे देती है तो वो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पास जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उसे रीड करते हैं। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। रिमेंबर, दिस इज द हाईएस्ट पावर प्रेसिडेंट हैव, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है उनके पास कि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं हो सकता, वो पास नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्रेसिडेंट उसे साइन करता है एंड देन द बिल बिकम्स एन एक्ट। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ने रीड किया और उनको ऐसा लगा कि ये बिल प्रॉपर नहीं है, ओके, तो वो उसे वापस भेज सकते हैं, राइट, फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। वापस वो राज्यसभा में बिल जाएगा, लोकसभा में जाएगा, बट अगेन ऐसा लगा कि इसमें कोई रिकंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। राज्यसभा या लोकसभा को लगा कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट हैव टू साइन इट देन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो बिल को लॉन्ग टर्म तक उनके पास विथहोल्ड करके रख सकते हैं, राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आता है तो उन्हें कितने टाइम पे रिटर्न कर देना है, साइन करके कितने टाइम पे वापस करना है, ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो वो उस बिल को जितने टाइम तक चाहे उसे विथहोल्ड करके रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, ये एक पावर है उनके पास, ठीक है। सो वी हैव आल्सो डिस्कस मेनी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हियर। लेट्स मूव अगेन टू द लोकसभा। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। यहाँ डिफरेंस बिटवीन में हम ये लिख सकते हैं, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस,
लोकसभा इज नॉट द परमानेंट हाउस। क्यों? लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। If president feels या पार्लियामेंट को ऐसा लगा that लोकसभा is not working properly, then what happens कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट हाउस नहीं है। तो चलो, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है, वो कौन संभालेगा? तो ईच एंड एवरी वर्क ऑफ लोकसभा इज बीन शोल्डर्ड बाय राज्यसभा। तो वो काम पूरा कौन संभालेगा? जब तक लोकसभा का दूसरा सेशन या दूसरे इलेक्शंस होके फिर से नए मेंबर्स नहीं आ जाते, तब तक लोकसभा का पूरा काम संभालेगा राज्यसभा। ठीक है, इट्स टर्म इज 5 years, तो लोकसभा का 5 साल का होता है, दैट इज एवरी 5 years में इनके इलेक्शंस होते हैं। कब? अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ 5 साल में तो, अदरवाइज वो 5 साल के बीच में अगर ही लोकसभा इज नॉट वर्किंग वेल तो वो डिसॉल्व हो सकता है। ओके, Constitution of India is supreme and not the parliament. Okay, कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। भले पार्लियामेंट पे लोकसभा है, राज्यसभा है, whatever सेंट्रल लेवल पे है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। वो अपेक्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट है। ठीक है, हैंस द पार्लियामेंट हैज टू एंजॉय It's within the limits prescribed by the constitution. So पार्लियामेंट के हाथ बंधे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को उतना ही एंजॉय करना है जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब करके दिया है। वो एक लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम करके दी है और उसी में उनको खेलना है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। If the law framed by the parliament violates the constitution, अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने ऐसा फ्रेम किया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया है, तो फिर ये चीज कोर्ट में चैलेंज्ड होगी। Okay, if the court finds the framed laws against the provisions of the constitution, the court can nullify the laws. और अगर constitution के against कोई भी law framed हुआ है and if कोर्ट फील्स कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और कोर्ट ये मान्यता दे देता है, तो फिर उस लॉ को नलीफाई कर दिया जाएगा, यानी वो लॉ पास नहीं होगा, उस लॉ को फ्रेम नहीं किया जाएगा या उसे फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो अप टिल हियर ओनली विल कंटिन्यू। फाइन, so this is what we have discussed today. We have discussed about legislative, executives and judicial, but अभी और details में जाना है, अभी और functions and all such things we are get to know, right? But for today's lecture I think it's more than enough. So I hope you like this lecture, you understand it well, and bye bye, thank you.